So hello everyone, welcome to Genetic Education. So in this session I'll be starting a new topic, that is synchronous machine. Okay, so we will try to cover up the remaining part of induction machine later on, but now onwards we'll be focusing on synchronous machine. Okay, so we have already completed transformer and induction machine concept. Okay, induction machine concept and transformer is over. So tell me, what is the application of transformer? What is the in power system? See, machine is completely related to the power system. Okay, in our power system different equipments are there. What are the equipments? Transmission line, power transformer, alternator. Okay, so the most vulnerable equipments is the alternator one. Okay, so different parts of the transformer, and so basically in order to analyze the power system, we should know the different equipment of the power system, and those equipments are basically the electrical machines. That means including your power transformer to alternator, and the end point is your electrical load. And basically 70% of the electrical loads are, write down, 70% 70 to 80% of loads are your machine load. So basically machine load मतलब क्या है? That is your 3-phase induction motor. Okay, out of net power, whatever be the net power consumption in India, 70 to 80% of power are consumed by our industries, different industries, okay, to produce different product, right? So 70 to 80% power are consumed by industries, and rest 20% power are consumed by our domestic load. Correct? So out of those 70 to 80% power which is consumed by your industries are basically consumed by which particular device or which particular machine? That is your 3-phase induction motor. Okay, that is your 3-phase induction motor. So remember one thing, load मतलब क्या होता है? What is load? बेसिकली लोड का एक ही फोकस है, दैट इज 3-phase इंडक्शन मोटर, यही बस पावर कंज्यूम करता है. ठीक है, एंड डिफरेंट थिंग लाइटिंग लोड बहुत ही कम पावर कंज्यूम करेगा. ठीक है, लाइटिंग लोड बहुत ही कम पावर कंज्यूम करेगा, क्योंकि नाउ इट इज डिफरेंट टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इवॉल्व. ओके, नाउ इट इज वी आर यूजिंग एलईडी लाइट. ओके, not even your fluorescent tube, right? So basically our load means 3-phase induction motor. Now come to the important topic, that is everything is fine, load is there, transmission line is there, power transformer is there, but I want to use the energy in the form of electrical energy. I want electrical energy. So the question is, who will produce electrical energy? Tell me, who will produce electrical energy? These are the consumer of electrical energy. Induction motor is a consumer of electrical energy. DC motor is a consumer of electrical energy. Okay, all the forms of motor are the consumer of electrical energy. But who is the producer or who is the generator of electrical energy? Those are DC generator and AC generator. Electrical energy are in the form of, are in of two form, that is AC and DC. AC means alternating current, DC means direct current. So where the frequency is 0, that is DC, that is your battery. And battery कैसे प्रोड्यूस होता है? हाउ टू फॉर्म? सी, बैटरी में क्या होता है एग्जैक्टली? वहां पे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है? नो, वहां पे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है. इन बैटरी केमिकल एनर्जी विल कन्वर्ट टू योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सबको पता है. बट इन केस ऑफ योर जनरेटर, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Again, two types of generator are there.
one is DC generator, another is your AC generator. So DC generator will discuss while discussing DC machine. जब हम लोग DC मशीन डिस्कस करेंगे वहीं पे हम DC जनरेटर डिस्कस करेंगे, करेक्ट. बट नाउ वी हैव टू फोकस AC generator, right? AC generator. So basically it is a three-phase AC generator which is called your alternator, or this is also called synchronous generator. So I will discuss why the word is synchronous, why not asynchronous, right? Why the word we use, why the prefix word that is synchronous has been used in this case, why not asynchronous, I will discuss. Hold on. It is a very beautiful concept, right? So AC energy that is produced or generated by your alternator or synchronous machine, and we will exclusively discuss about synchronous machine in this chapter. Again, tell me. ये ना दिलीप, ये ओके. सो सिंक्रोनस मशीन मतलब सिंक्रोनस मशीन मतलब क्या है? बोथ जेनरेटर और मोटर, both generator and motor. So first of all we will be discussing generator, क्योंकि अल्टीमेटली पावर सिस्टम में सारे लोड्स हैं, ट्रांसमिशन लाइन है, डिफरेंट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं. नाउ इट इज यू आर यूजिंग HVDC फॉर पावर ट्रांसमिशन, फैक्ट्स डिवाइस फॉर पावर ट्रांसमिशन, डिफरेंट रिएक्टिव पावर कंपेंसेटिंग डिवाइसेस, राइट? व्हाट आर द कंपेंसेटिंग डिवाइसेस? टेल मी, व्हाट आर द कंपेंसेटिंग डिवाइसेस? थायरिस्टर, सीरीज कंट्रोल, सीरीज रिएक्टर, ओके, TCSC, ओके, डिफरेंट टाइप, हाँ, स्टार्टकम, स्टैटिक वोल्टेज कंट्रोलर, स्टैटिक कंपेंसेटर, UPFC, these are the reactive power compensating devices. So already I told you what is the relation between reactive power का रिलेशन किसके साथ है? रिएक्टिव पावर का रिलेशन किसके साथ है? वोल्टेज के साथ है. सो इन ऑर्डर टू रेगुलेट द वोल्टेज आई नीड टू रेगुलेट द रिएक्टिव पावर, राइट? ऑलरेडी आई टोल्ड यू. सो these are the reactive power devices. बट अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए? एक सोर्स चाहिए था, एक सोर्स चाहिए था. दैट सोर्स विल ड्राइव द करंट इन द सर्क्यूट, in the power system circuit. A source will drive the current. So what is the source in the power system? That is your synchronous generator or your alternator, right? Now tell me, in synchronous generator I have my ultimate target is to produce EMF, okay? I have to produce electromagnetic force, EMF. So tell me, from the basics of Faraday's, tell me how to produce electromagnetic torque. What are the conditions to produce electromagnetic torque? First of all, I should have a set of conductors. उसके बाद क्या होना चाहिए? Definitely, from Faraday's laws of electromagnetic induction, first law states that whenever a time varying field or whenever a space varying field, time varying मतलब वो statically induced EMF होगा, एंड स्पेस वेरिंग मतलब वो क्या होगा? डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. सो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां पे होगा? जनरेटर के केस में होगा. एंड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां पे होगा? ट्रांसफार्मर में होगा. ठीक है. सो I need to have a magnetic field which should have either time varying or space varying. Then only EMF will be induced in the
then only EMF will be induced in set of conductors and I have to collect those EMF and I have to drive the entire power system. This is the concept behind this, right? So second one is magnetic field. So you already know time varying and space varying. Write down टाइम वेरिंग फील्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज इन केस ऑफ योर डीसी जनरेटर. स्पेस वेरिंग इज इन केस ऑफ योर डीसी, नहीं जस्ट अ मिनट, ट्रांसफार्मर. करेक्ट. नाउ कम टू द केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन. तो सिंक्रोनस मशीन में मुझे क्या करना पड़ेगा? टेल मी. सी, इन जनरेटर मैकेनिकल इनपुट इज गिवन. ओके, मैकेनिकल इनपुट इज गिवन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैकेनिकल इनपुट इज गिवन. मान लो आपका एक थर्मल पावर स्टेशन है, वहां पे मैकेनिकल इनपुट किस फॉर्म में होगा? स्टीम के फॉर्म में होगा. ओके. एंड अगर मान लो एक हाइड्रो पावर स्टेशन है, तो वहां पे मैकेनिकल इनपुट कौन सा फॉर्म में होगा? टनल में हाई प्रेशर वाटर फ्लो होगा एंड ओ आपका जो टरबाइन का ब्लेड को कट करेगा, टरबाइन विल रोटेट, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, राइट? सो बेसिकली यहां पे क्या चाहिए? मैकेनिकल इनपुट सप्लाई होगा किसको? अल्टरनेटर को. सो मैकेनिकल इनपुट अगर अल्टरनेटर को सप्लाई होगा, इसका मीनिंग whether I should have a time varying field or space varying field. Whether I should have a time varying field or space varying field. Here I should have a space varying field, क्योंकि मैकेनिकल इनपुट दिया जा रहा है. मैकेनिकल अगर इनपुट दिया जाएगा, वहां पे एक रोटेटिंग पार्ट होगा, वो रोटेट करेगा, ऑब्वियस चीज है. अगर वो रोटेट करेगा, यहां पे टाइम वेरिंग हो रहा है या स्पेस वेरिंग हो रहा है? यहां पे स्पेस वेरिंग हो रहा है. That's why the magnetic field should be space varying, not time varying. Okay, write down here magnetic field must be space varying, not time varying. ठीक है. बट आई हैव ए क्वेश्चन. अगर टाइम वेरिंग होगा, व्हाट विल बी द कंसिक्वेंस? अगर टाइम वेरिंग होगा, व्हाट विल बी द कंसिक्वेंस? What will be the consequence? इसका कंसिक्वेंस क्या होगा आपको बताना है. अगर टाइम वेरिंग होगा, इसका कंसिक्वेंस होगा, राइट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है. यू कैन सर्च इट फ्रॉम इंटरनेट और एनी बुक्स. ठीक है, आप इसको बुक में मत सर्च करो, नहीं मिलेगा. आप इंटरनेट में सर्च करो एंड बताओ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग होगा. टाइम वेरिंग का मतलब क्या होता है, समझ गए आप लोग? टाइम वेरिंग का मतलब क्या है, समझ गए? आपका मैग्नेटिक फील्ड एसी होना चाहिए. अगर स्पेस वेरिंग होगा तो मैं डीसी अप्लाई कर सकता हूं. सो स्पेस वेरिंग का मीनिंग है, इसका इंप्लिसिट मीनिंग है डीसी फील्ड. इसका इंप्लिसिट मीनिंग है डीसी फील्ड. सो द एक्साइटेशन वुड बी डीसी. करेक्ट. नाउ सो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए? सेट ऑफ कंडक्टर्स एंड ए स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. सो सेट ऑफ कंडक्टर्स कहां पे रखेंगे हम लोग? सेट ऑफ कंडक्टर्स कहां पे रखेंगे? स्टार्टर में रखेंगे. ओके,
कंडक्ट सेट ऑफ कंडक्टर्स हम कहाँ पे रखेंगे, स्टार्टर में. सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस स्टार्टर एंड रोटर इन केस ऑफ योर इंडक्शन मोटर. तो क्या होता है बेसिकली, स्टार्टर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लॉट्स होगा, करेक्ट. इन स्टार्टर डिफरेंट स्लॉट्स विल बी देयर. ये इंपॉर्टेंट है. इन स्टार्टर स्लॉट्स विल बी देयर. ये है आपका स्टार्टर. ये है आपका रोटर. See, don't look at the shape of the rotor for the time being. I will explain why the shape is like this. ठीक है, बट आपको एक चीज ध्यान देना है अभी के लिए कि स्टार्टर एक स्टैटिक पार्ट एंड रोटर बाय डिफॉल्ट इट विल बी रोटेटिंग अराउंड द शाफ्ट. ठीक है, अभी के लिए वही चीज ध्यान देना है. एंड व्हाट आई एम टेलिंग, लिसन टू मी केयरफुली. सो स्टार्टर ओबियसली स्टैटिक पार्ट है एंड यहां पे हम क्या किए, डिफरेंट एन नंबर ऑफ slots लगा दिए and slots will be equipped with conductors and in the conductors EMF will be induced and if EMF will be induced we have to collect this induced EMF. okay, now second part क्या था, हमको एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. तो मैग्नेटिक फील्ड तो हम एक्सटर्नल सोर्स से अप्लाई नहीं कर सकते हैं. जैसे कि मान लो यहाँ पे ये एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, हम यहाँ पे स्टार्टर लगा देंगे एंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स एक नहीं लगा पाएंगे. नो, वी हैव टू इंसर्ट ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिंक्रोनस मशीन. तो वो क्या होगा, वो कहां पे लगाएंगे. एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू, यहां पे हम मैकेनिकल इनपुट दे रहे हैं. मैकेनिकल इनपुट अगर देंगे रोटर विल बी रोटेटिंग. ओके, ओबियसली रोटर विल बी रोटेटिंग. अगर रोटर रोटेट कर रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है, स्पेस वेरिएशन हो रहा है. तो स्पेस वेरिएशन हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, हम रोटर में डीसी सोर्स देंगे या एसी सोर्स देंगे. यहां पे हम रोटर में डीसी सोर्स देंगे क्योंकि एसी मतलब क्या है, टाइम वेरिंग. लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, स्पेस वेरिएशन हो रहा है. स्पेस वेरिएशन मतलब यहां पे हम अगर डीसी स्टैटिक डीसी देंगे, मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्टेडी स्टेट, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन स्टेडी नेचर. वो स्टैटिक होगा, स्टैटिक स्पेस वेरिएशन करेगा. ठीक है, स्टैटिक फील्ड स्पेस वेरिएशन करेगा, राइट. सो ये है आपका रोटर. सो मुझे क्या चाहिए था, अल्टीमेटली मुझे एक फील्ड चाहिए था. सो can I have a magnetic field by inserting the by inserting the magnetic field winding like this? Tell me. ओके, यहां पे अगर हम एक डीसी सोर्स दे दिए तो कैन आई हैव ए यहां पे कनेक्शन है. ठीक है, यहां पे एक क्लोज लूप है. सी, कॉइल्स मतलब क्या है, ये क्या है, ये सपोज आपका एक इंडक्टर है. ठीक है, ये है आपका इंडक्टर. सो यहां पे अगर हम एक बैटरी के थ्रू अगर सप्लाई देंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, फील्ड प्रोड्यूस होगा. एंड दैट फील्ड विल बी इन स्टैटिक फील्ड. वो स्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, नॉट टाइम वेरिंग फील्ड. क्योंकि यहां पे हम एक बैटरी के थ्रू ईएमएफ दिए हैं. इसका मीनिंग क्या है, करंट थ्रू द कॉइल विल बी रिमेन कांस्टेंट, इट इज स्टैटिक इन नेचर. सो क्या होगा, एक कांस्टेंट फील्ड प्रोड्यूस होगा, एक कांस्टेंट फील्ड प्रोड्यूस होगा. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. This is the basics or the introduction to synchronous machine. Okay, these are the basics or the introduction to synchronous machine. Okay, now so already I am having starter and starter are equipped with winding that is called starter winding. सो स्टार्टर वाइंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा एंड आई हैव टू कलेक्ट दोज इंड्यूस्ड ईएमएफ. एंड इन द रोटर आई हैव टू गिव द एक्साइटेशन दैट इज ए डीसी or constant field excitation and shaft will be connected to the rotor where I will be supplying the
where I'll be supplying the mechanical input. Okay, I'll be supplying the mechanical input. So the rotor will be rotating. So rotor will be rotating and it will cut the, so rotor will be rotating and it will cut the starter winding and EMF will be induced. So according to Faraday's law, whenever whenever flux linked with a coil changes, then EMF will induced. So रोटर में आपका कांस्टेंट फील्ड है, इसको अगर रोटेट कराएंगे बाय relative space variation, just because we are applying the mechanical power input, so relative space variation with respect to the starter conductor, then definitely EMF will be induced in the starter conductor. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. सो टेल मी whether I'll be using commutator or not. Yes, I will not be using any commutator, क्योंकि यहाँ पे कुछ कन्वर्सन का प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे कुछ कन्वर्सन का प्रोसेस नहीं है. सो वॉट एवर बी द आउटपुट वोल्टेज विल बी AC and the current inside the conductor will be also is also sinusoidal. Right? So this is starter, this is rotor. So रोटर में बेसिकली क्या होगा, फील्ड होगा, एंड स्टार्टर में कंडक्टर्स होंगे. ओके, स्टार्टर में कंडक्टर्स होंगे. इन द स्लॉट्स ऑफ द स्टार्टर कंडक्टर्स विल बी प्लेस्ड एंड आई विल बी गेटिंग ए नेट इंड्यूस्ड EMF. राइट? सो दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मशीन. एंड ये चीज ऑलरेडी आप लोगों को पता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक चेंजेस हुआ था. ठीक है, जो आप डीसी मशीन में पढ़ते हैं वहीं से एक थोड़ा सा माइन्यूट चेंजेस हुआ था. यहाँ पे रोटर्स एक अलग टाइप का है. राइट? एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस टाइप ऑफ रोटर इज कॉल्ड योर सैलिएंट पोल रोटर. सो एक चीज बताओ, यहां पे पोल फॉर्मेशन होगा, ऑब्वियसली पोल फॉर्मेशन होगा. सी, यहां पे अगर करंट डायरेक्शन ये है, करंट डायरेक्शन हियर इज I. ओके, सो अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन ये होगा. ठीक है, फ्लक्स का डायरेक्शन ये होगा. सो इसका मीनिंग क्या है, दिस विल बी नॉर्थ पोल, दिस विल बी साउथ पोल. सिमिलरली यहां पे ऐसा ही कुछ ओरिएंटेशन लेंगे, जैसे कि ये बनेगा नॉर्थ पोल. ओके, ये बनेगा साउथ पोल, ये बनेगा नॉर्थ पोल, ये बनेगा साउथ पोल. राइट? दिस विल बी द directions of pole. These are the poles inside the rotor. Okay, these are the poles inside the rotor. And another simple thing, let me tell you, you have already studied in DC machines. So the axis which is passing through the poles is called, tell me, the axis which pass through the pole is called your direct axis. इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सिस. एंड द एक्सिस which is passing through or which passes through the middle of two direct axis. So यहां पे एक डायरेक्ट एक्सिस होगा. ठीक है, this is also a direct axis, but this axis is not passing through the poles. This axis is not passing through the poles. So this axis is called your quadrature axis. This axis is called your quadrature axis. So ये चीज ऑलरेडी आप जानते हैं, माइनर मतलब ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन आपके पास है. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट. ठीक है, लेट्स कम टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट.
सो ये है आपका अल्टरनेटर, ये है आपका अल्टरनेटर. सो दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट. करेक्ट. सो टेल मी व्हाट इज द आउटपुट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. व्हाट इज द इनपुट? मैकेनिकल एनर्जी. ओके. बट टेल मी, in order to produce EMF, what I need? In order to produce EMF, I need mechanical input, mechanical input. Second one is DC excitation. Second one is excitation, and in this case it will be DC excitation. मुझे एक फील्ड चाहिए. फील्ड मतलब सी एक्साइटेशन क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. मैकेनिकल इनपुट क्या करेगा? रोटर विल बी रोटेटिंग. अगर रोटर रोटेट करेगा, फील्ड क्या होगा? रिलेटिव स्पेस वेरिएशन होगा. अगर रिलेटिव स्पेस वेरिएशन होगा, देन डेफिनेटली ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द स्टार्टर कंडक्टर्स. राइट. सो मुझे क्या चाहिए? अल्टीमेटली मेरा इनपुट क्या चाहिए? I need to have mechanical input as well as DC excitation, right? Then only electrical energy will be produced. Fine. Electrical energy produce हो गया. So electrical energy जो produce होता है वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है? In the form of voltage. क्योंकि यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? Induced EMF. अच्छा, AC वोल्टेज प्रोड्यूस होगा. तो AC वोल्टेज का कुछ स्पेशलिटी होता है, उसका एक प्रॉपर्टीज होता है. AC वोल्टेज शुड हैव ए डेफिनाइट फ्रीक्वेंसी. ओके. AC वोल्टेज शुड हैव ए डेफिनाइट फ्रीक्वेंसी. करेक्ट. AC वोल्टेज शुड हैव ए डेफिनाइट फ्रीक्वेंसी. दैट फ्रीक्वेंसी इज एफ. वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सी AC voltage is sinusoidal. Okay. AC voltage is time varying. Okay. AC voltage is sinusoidal or time varying. So ये है 0, pi, 2 pi. ठीक है. And time period is how much? This is the time period. Correct. So frequency will be how much? It will be 1 by t. The frequency will be how much? 1 by t. ये चीज आपको पता है. मेरा मोटो क्या है कि यहां पे जो भी प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, लेकिन उसका एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होता है. मेरा टारगेट दूसरा है. ये सब चीज आपको पता है, ये सारी चीज आपको पता है, ये सब चीज आपको पता है ऑलरेडी. लेकिन मेरा टारगेट एक चीज है, एक चीज के साथ मेरा को रिलेट करना चाहता हूं. ठीक है. क्या है को रिलेशन? यहां पे फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगा. सी यहां पे ईएमएफ, यहां पे वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, बट इट इज हैविंग ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. सो आपको ये एक चीज पता होगा कि हमारे जितने भी लोड्स हैं, मान लो एक रेफ्रिजरेटर है. ठीक है. उस रेफ्रिजरेटर का फ्रीक्वेंसी का भी कुछ रेटिंग्स होगा. दैट इज फॉर 50 हर्ट्ज. सो उसको हमेशा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए. यस, ऑफकोर्स कुछ वेरिएशन होगा, कुछ वेरिएशन इज अलाउड ऑफकोर्स, लेकिन हम उसको 25 हर्ट्ज नहीं दे सकते हैं. क्या होगा 25 हर्ट्ज देने से? उसका कंसीक्वेंस जानना वो अलग चीज है. लेकिन हम एक चीज जान लो, वी कैनॉट अप्लाई 25 हर्ट्ज टू ए रेफ्रिजरेटर हैविंग ए फ्रीक्वेंसी रेटिंग ऑफ 50 हर्ट्ज. ओके, आई कैनॉट अप्लाई. सो आई मस्ट मेंटेन द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट. इसका मीनिंग क्या है? दिस फ्रीक्वेंसी द EMF, the frequency of EMF induced of the alternator must be constant. Okay. अल्टरनेटर का आउटपुट में जो भी वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ, जो भी EMF इंड्यूस्ड हुआ, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. लेकिन ये फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है? वी हैव टू चेक दोस थिंग, दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. हमको इसका रिलेशन किसके साथ है वही हमको चेक करना है बस. सो क्या होता है बेसिकली,
मैकेनिकल इनपुट जो होगा, मैकेनिकल इनपुट देने के बाद रोटर विल बी रोटेटिंग एट ए पर्टिकुलर स्पीड. स्टार्टर इज स्टैटिक डिवाइस, रोटर इज रोटेटिंग. रोटर जितना स्पीड में रोटेट करेगा, योर मैग्नेटिक फील्ड विल बी रोटेटिंग इन एट दैट पर्टिकुलर स्पीड. सो फ्लक्स कटिंग विद द कंडक्टर जो होगा उसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा? द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्टैटिक कंडक्टर will be equal to the rotor speed because starter is at rest. अगर starter rest में है तो starter conductor is also at rest. So the relative speed between the starter conductor and the rotor, rotor मतलब यहां पे rotating magnetic field, magnetic field will be rotating at the same speed as the rotor. So what will be the relative speed between your starter conductor and magnetic field? It will be equal to rotor speed. Okay, and आपको पता है कि EMF इंड्यूस्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिलेटिव स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, सो रिलेटिव स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है. सो EMF इंड्यूस्ड जो होगा उसका फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसका फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करेगा रिलेटिव स्पीड के ऊपर. एंड यहां पे रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होगा? रोटर स्पीड होगा. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? प्लीज ट्राई टू कनेक्ट. ओके, यहां पे रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होगा? रोटर का स्पीड होगा. सो रोटर का स्पीड अगर होगा तो आपका ईएमएफ का फ्रीक्वेंसी किसके साथ रिलेशन होगा? वो भी रोटर के स्पीड के साथ रिलेशन होगा. ठीक है, So we know a relation between the frequency of the output and the speed of the rotor, which is given by ns is equal to 120 f by p. Okay, what is ns? ns is your synchronous speed. What is p? Number of poles. अच्छा, एक चीज बताओ, अगर कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, I have purchased an alternator for a power station. ठीक है, अगर एक बार हम लोग परचेज कर ली, इसका नंबर ऑफ पोल्स चेंज होने वाला है? कभी नहीं होगा. नंबर ऑफ पोल हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, कांस्टेंट रहेगा. सो यू कैन सी हियर नाउ यू विल बी गेटिंग ए रिलेशन कॉल्ड ns इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. बट इन दिस केस कौन सा चीज इनपुट होता है? आप बताओ. इनपुट इज स्पीड, दैट इज मैकेनिकल इनपुट. So I can write here frequency output is directly proportional to n input. Okay, frequency output is directly proportional to n input. n input क्या होता है? रोटर स्पीड होता है. It is your रोटर स्पीड. ये क्या होता है? आपका रोटर स्पीड होता है. ठीक है, but I need to have a constant frequency that is 50 hertz. I need to have a constant frequency that is 50 hertz. इसका मीनिंग क्या है? I have to operate the rotor at constant speed. I have to operate the rotor at constant speed. मुझे अल्टीमेटली एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए. तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए अल्टीमेटली रोटर स्पीड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए. इसका मीनिंग क्या है? मैकेनिकल इनपुट मस्ट बी कांस्टेंट. मैकेनिकल इनपुट मस्ट बी कांस्टेंट, राइट? देन ओनली आई विल बी गेटिंग ए फ्रीक्वेंसी हैविंग कांस्टेंट. आई विल बी गेटिंग ए इंड्यूस्ड वोल्टेज हैविंग कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो ये तो सिंपल चीज है, ये तो आप समझ गए. लेकिन मेरा फोकस है कि इसको सिंक्रोनस क्यों बोला जाता है? व्हाई द नेम इज सिंक्रोनस? सिंक्रोनस मीनिंग ये नहीं है. सी, आपको पता होगा कि नहीं सर, सिंक्रोनस मतलब सेम होता है. सेम मतलब स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है. तो स्पीड अगर वेरी करेगा, फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा.
तो सेम रिलेशन है, इसीलिए इसको सिंक्रोनस स्पीड बोला जाता है। यस, दैट इज करेक्ट। बट एग्जैक्टली क्या होता है, that same is not between rotor, that same is not between speed and frequency, rather it is the same between input mechanical quantity and output electrical quantity। तो सेम मतलब क्या है, बेसिकली सिंक्रोनस। ओके, सिंक्रोनस मशीन का मेन, व्हाट इज द सिंक्रोनस मशीन का मेन चीज क्या होता है, सेम होगा, सेम बिटवीन इनपुट मैकेनिकल क्वांटिटी एंड आउटपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ये दोनों के बीच जो डायरेक्ट रिलेशन है, दैट्स व्हाई द नेम इज सिंक्रोनस मशीन। ओके, दैट्स व्हाई द नेम इज सिंक्रोनस मशीन, राइट। ठीक है, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, तो यहां पे मेन रोल कौन प्ले करता है, इनपुट क्वांटिटी, मैकेनिकल इनपुट, डीसी एक्साइटेशन। सो मैकेनिकल इनपुट अगर है तो वहां पे मैकेनिकल तो कुछ एनर्जी होगा, दैट एनर्जी इन वहां पे कुछ एनर्जी होगा। सो वो एनर्जी का कुछ पावर होगा, वही पावर को हम कैसे लिखेंगे, मैकेनिकल पावर के थ्रू? नो, जब भी हम मैकेनिकल क्वांटिटी को डील करते हैं, देन वी आर बेसिकली यूज इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क। ओके, ऑलरेडी आई टोल्ड यू व्हाइल डिस्कसिंग इंडक्शन मशीन, मैकेनिकल क्वांटिटी का पावर के साथ हम लोग फैमिलियर नहीं है, मैकेनिकल क्वांटिटी का टॉर्क के साथ हम लोग फैमिलियर हैं। सो क्या होगा, मैकेनिकल इनपुट इज फाइनली कन्वर्टिंग टू द इलेक्ट्रिकल आउटपुट, राइट। सो मैकेनिकल इनपुट का भी टॉर्क फॉर्म लेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट का भी टॉर्क का फॉर्म लेंगे, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मैकेनिकल इनपुट ही आपका मैकेनिकल इनपुट ही इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है। सो मैकेनिकल पावर इनपुट तो हम, इसका कौन सा फॉर्म हमको पता है, टॉर्क का फॉर्म, वी आर फैमिलियर। सिमिलरली हम इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट का भी टॉर्क का फॉर्म ही लेंगे, तब जाके बैलेंस बनेगा ना। अदरवाइज हाउ टू राइट द टॉर्क बैलेंस इक्वेशन, otherwise how can you write the torque balance equation? So write down the torque balance equation. This is the torque balance equation which is need to be studied for the stability of synchronous machine, for every machine we have to study the stability. Okay, and in case of your synchronous machine we have to study the synchronism, right? So the torque balance equation is the mechanical torque input is equal to the electromagnetic torque output, which will be converted to the electrical power output. See, मैकेनिकल पावर का फॉर्म, मैकेनिकल पावर का किस फॉर्म में लिए, टॉर्क में लिए, तो इलेक्ट्रिकल का भी टॉर्क में लेंगे। तो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट जो होगा उसका टॉर्क फॉर्म क्या होगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्लस फ्रिक्शनल टॉर्क बी ओमेगा प्लस जे डी ओमेगा बाय डी टी। ओके, प्लस जे डी ओमेगा बाय डी टी। This is called your inertial torque.
ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्क, ये है आपका फ्रिक्शनल टर्क, ये है इनर्शिया टर्क। ठीक है, सो अब बताओ यहां पे डी ओमेगा बाय डी टी क्या है। ओमेगा मतलब क्या होता है, इन एंगुलर इन रोटेशनल मोशन ओमेगा क्या होता है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। सो एट स्टेडी स्टेट सी यहां पे स्पीड क्या होना चाहिए, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कांस्टेंट होना चाहिए। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है, डी ओमेगा बाय डी टी क्या होगा एट स्टेडी स्टेट, आई एम डिस्कसिंग अबाउट एट स्टेडी स्टेट। सो एट स्टेडी स्टेट स्पीड क्या होगा, ओमेगा व्हिच इज कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट होगा डी ओमेगा बाय डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डी ओमेगा बाय डी टी विल बी जीरो। एम आई करेक्ट और नॉट, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एट स्टेडी स्टेट इट विल बी जीरो। सो आई कैन राइट हियर टीपीएम TEM B omega. So again we know that the relation between torque and power is given by power equal to torque cross omega. Power is equal to torque cross omega. So I can write here T cross omega is equal to TPM cross omega is equal to TEM cross omega plus B omega square. So here I can write here T PM cross omega को हम क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर प्लस लॉसेस। ठीक है, मैकेनिकल पावर इनपुट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट प्लस लॉसेस। दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन which we derived from the torque balance equation, which we have derived from the torque balance equation, right, which we have derived from the torque balance equation. एंड यही टॉर्क बैलेंस इक्वेशन से आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिराइव करते हैं, दैट इज योर rotor dynamics equation, which is okay, this is the rotor dynamics equation, d delta square by dt square equal to pa. pa क्या होता है, एक्सेलरेटिंग पावर। m क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर पावर सिस्टम, राइट, इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर पावर सिस्टम। All of you are getting my point? Tell me. All of you are getting my point? Now we'll discuss the construction of alternator. Okay, so let me tell you, स्टार्टर वही होगा, स्टार्टर वही होगा। स्टार्टर मतलब क्या, स्टार्टर का मेन काम क्या है, इट हैज स्टार्टर स्लॉट्स में कंडक्टर्स होंगे, कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वही ईएमएफ को हमको कलेक्ट करना है। तो स्टार्टर इज वेरी सिंपल वन, स्टार्टर में बस स्टार्टर विल बी इक्विप्ड विथ slots where conductors will be placed. Second one is rotor, second one is rotor.
but in case of your synchronous motor, two types of rotor will be there. Two types of rotor will be there based upon, tell me which quantity, based upon speed. करेक्ट. सी, मैकेनिकल इनपुट अल्टीमेटली क्या देगा, स्पीड प्रोड्यूस करेगा. कहां पे रोटर पे, रोटर बॉडी में. मैकेनिकल, हाँ, मैकेनिकल इनपुट क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पीड प्रोड्यूस करेगा. कहां पे, रोटर बॉडी पे. ठीक है, तो रोटर विल बी रोटेटिंग एट ए पर्टिकुलर स्पीड. सो डिपेंडिंग अपॉन दिस स्पीड वी हैव टू categorize the rotor into two types. One is salient pole, second one is cylindrical. तो salient pole already I discussed you, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके थे. ठीक है, once again let me draw here briefly. Okay. Okay, so this is your salient pole rotor. So why the name salient? Salient meaning how many number of poles are there? 4 poles. So it is 2 pairs of poles are there. 2 pairs of poles or 4 poles are there. So salient का meaning क्या होगा? When poles are projected, when poles are projected outwards, when poles are projected outwards, then the name is called salient pole. Okay, अच्छा अब बताओ. I told you rotor are classified into of two types. One is salient pole rotor, another is cylindrical pole rotor. Correct? So cylindrical, this is salient pole rotor. So salient pole का meaning क्या है? When poles are projected outwards, but these rotors are classified based upon the speed. So based upon the speed मतलब स्पीड का कुछ वेरिएशन जरूर होगा. दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग दिस थिंग. अदरवाइज हम सीधा कहां पे पहुंचते, अभी आर्मेचर रिएक्शन पढ़ते. ठीक है, कुछ सिग्निफिकेंस जरूर होगा. तो स्पीड कम, लो होगा या हाई होगा. तो आप बताओ ये पोल हाई स्पीड के लिए सुइटेबल है या इट इज सुइटेबल फॉर लो स्पीड. Whether this type of poles are suitable for low speed operation or high speed operation, tell me. अब बताओ, अगर हाई स्पीड होगा तो यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये सब आप लोग 12th के 11th फिजिक्स में पढ़े होंगे, राइट. सर्कुलर मोशन, व्हाट इज द एक्सप्रेशन, F इजिकल टू mv²/r. ठीक है, क्या होता है वो, सर्कुलर मोशन ना. सपोज द रेडियस इज r,
यहां पे एक बॉडी है, ठीक है, इट इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ v एंड इसका मास क्या है m. सो सेंट्रीपिटल फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर एंड व्हिच इज गिवन बाय mv स्क्वायर बाय r. ठीक है, mv स्क्वायर बाय r. तो आप बताओ हाई स्पीड मतलब वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा. तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर बहुत ही ज्यादा होगा, हो सकता है इसका मैकेनिकल स्टेबिलिटी कम हो एंड इसका ये डिस्प्लेस हो जाए. ओके, ये अपना मैकेनिकल स्टेबिलिटी लूज कर सके. मतलब ये कुछ भी हो सकता है अगर हाई स्पीड करेंगे तो. So basically this is not at all suitable for high speed. This is suitable for low speed operation. ठीक है, this is suitable for low speed operation, right? This is suitable for low speed operation. Correct है, right? सो आप बताओ आउट ऑफ वेदर नहीं, इनके सब ये सोलर में कभी ये सब चीज होता है? आप बताओ, सोलर में कभी होगा? नहीं होगा ना. इनके सब थर्मल पावर स्टेशन एंड हाइड्रो पावर स्टेशन कहां पे स्पीड ज्यादा होता है, रोटर का स्पीड कहां पे ज्यादा होगा, वेदर इन केस ऑफ योर थर्मल और हाइड्रो पावर स्टेशन. सो द आंसर वुड बी high pressure, high temperature steam having a very high velocity. So the answer would be क्या होगा, steam power plant. Answer would be steam power plant. वहां पे स्पीड सॉरी आई एम डिस्कसिंग अबाउट योर साइलेंट पोल. सो मुझे क्या चाहिए, लो स्पीड ऑपरेशन चाहिए. But your high pressure, high temperature steam having very high kinetic energy, so इसका स्पीड ज्यादा होता है as compared to your hydro power station. So basically we will be using silent pole rotor in case of your hydro power station. पीपी मतलब पावर प्लांट. ठीक है, पीपी मतलब पावर प्लांट. सो इन केस ऑफ योर हाइड्रो पावर प्लांट विल बी यूजिंग साइलेंट पोल रोटर. ठीक है, नाउ लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन. ये है आपका सपोज रोटर बॉडी. सो ये होगा आपका रोटर का क्या, डायमीटर. ये होगा आपका रोटर का एक्सियल लेंथ. ठीक है, सो ये है आपका रोटर का डायमीटर एंड ये है आपका रोटर का एक्सियल लेंथ. ठीक है, सो आप बताओ L by D ratio is greater than 1 or L by D ratio is less than 1 for salient pole. मतलब रोटर का हाइट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डायमीटर और रोटर का डायमीटर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइट. हैव यू एवर visited a hydropower plant? Tell me, have you ever visited a hydropower plant? In Odisha many hydropower plants are there. Okay, in Odisha many hydropower stations are there, in Hirakud, in Indravati. Okay, so Odisha is a surplus state in terms of energy. Okay, so it is having many power plants. So if you have visited any hydropower station, so obviously you will find that the height of the generator is less.
height of the generator is rest, but the radius or the diameter is very large. The diameter is very large as compared to the height of the generator. Okay, so L by D ratio becomes less than 1. क्या होगा यहां? L by D less than 1. इसका मीनिंग क्या है? डायमीटर ज्यादा है. डायमीटर ज्यादा है मतलब रोटर बहुत ही बड़ा साइज का है. सो रोटर का डायमीटर अगर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली स्टार्टर का डायमीटर भी ज्यादा होगा. इट इज ए सिंपल थिंग. रोटर का डायमीटर अगर ज्यादा है तो स्टार्टर का डायमीटर क्या होगा? ज्यादा होगा. सो स्टार्टर का अगर डायमीटर ज्यादा होगा, स्टार्टर में नंबर ऑफ स्लॉट्स भी ऑब्वियसली ज्यादा होगा. नंबर ऑफ स्लॉट्स, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ईएमएफ इंड्यूस्ड ज्यादा होगा. ठीक है, राइट. दिस इज फॉर सैलिएंट पोल रोटर. इसीलिए क्या होता है ना, सी कभी भी एक पावर स्टेशन में, कभी भी एक पावर प्लांट में नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं. क्या होते हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स. इट वेरीज फ्रॉम 3 to 7 8 लाइक दैट. ठीक है, कभी भी एक पावर प्लांट का सिंगल यूनिट नहीं होता है. जो भी पावर प्लांट की कैपेसिटी है, मान लो आपका एनटीपीसी, एनटीपीसी सुपर पावर प्लांट इज देयर. ओके, एनटीपीसी सुपर पावर प्लांट, सुपर थर्मल पावर प्लांट इज देयर. ओके, एनटीपीसी का सुपर थर्मल पावर प्लांट इज देयर इन ओडिशा. उसका कैपेसिटी है 3000 मेगावाट. सो 3000 मेगावाट मतलब ये नहीं है कि एक अल्टरनेटर 3000 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है. नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. इतना बल्क अमाउंट में प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है. सो यहां पे कितना यूनिट्स है? 6 यूनिट्स हैं. ईच प्रोड्यूसिंग हाउ मच? 5000 megawatt power plant. Sorry, power. It is having 6 units and it is each producing 500 megawatt of power. ठीक है? Each producing 5000 megawatt of power. So basically एक power plant का एक यूनिट नहीं होता है. It is having number of units and capacity is sum of the power produced by each unit, each individual unit. ठीक है, ऐसा मत सोचना कि एक ही अल्टरनेटर होगा वो 3000 मेगावाट पावर प्रोड्यूस कर रहा है. ऐसा नहीं होगा. ठीक है, right? So this is the concept of salient pole rotor. Now come to cylindrical pole. तो ऑब्वियसली नाम है सिलिंड्रिकल, मतलब ये तो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होगा. एंड यहां पे आपका यहां पे फील्ड प्लेस्ड होगा. ठीक है, यहां पे फील्ड प्लेस्ड होंगे. राइट. सो सिलिंड्रिकल रोटर में स्पीड का कोई इश्यूज है? नो. सो इट इज बेसिकली फॉर हाई स्पीड. हाई स्पीड मतलब हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, स्टीम हैविंग काइनेटिक एनर्जी वेरी हाई, दैट इज टर्बो अल्टरनेटर. मतलब थर्मल पावर प्लांट. ठीक है, ये क्या होगा? टर्बो अल्टरनेटर फॉर थर्मल पावर प्लांट, हाई स्पीड. दिस इज योर सिलिंड्रिकल. This is your cylindrical alternator. But in case of your cylindrical alternator, the length to diameter ratio is greater than 1. Of course, in fact it is 5 to 8 times. In fact, it is 5 to 8 times.
सो लेंथ टू डायमीटर रेशियो इज 5 to 8 टाइम। इसका मीनिंग क्या है? लेंथ बहुत ही ज्यादा है, लेंथ बहुत ही ज्यादा है। लेंथ अगर ज्यादा है तो कंडक्टर का लेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। एवरी अल्टरनेटर इज हैविंग इट्स इंडिविजुअल और यूनिक एडवांटेजेस, ओके। एवरी अल्टरनेटर इज हैविंग इट्स यूनिक एडवांटेजेस, राइट। इसका भी एडवांटेजेस है, उसका भी एडवांटेजेस था, ठीक है, उसका भी डिसएडवांटेजेस है था, इसका भी डिसएडवांटेजेस है। बट आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। आउट ऑफ cylindrical pole or salient pole alternator, which one is more stable? Which one is more stable? ये A है सपोज, ये B है। So which one is more stable, A और B? Tell me. ओके मुझे अल्टीमेटली बहुत ही अच्छा, बहुत ही हाई स्टेबल वाला अल्टरनेटर चाहिए। तो आउट ऑफ सिलिंड्रिकल पोल एंड सालिएंट पोल अल्टरनेटर, व्हिच अल्टरनेटर और व्हिच अल्टरनेटर इज मोर स्टेबल, यू हैव टू टेल, यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अल्टरनेटर। तो इसका पावर फ्लो डायग्राम हम डिस्कस करेंगे, ओके इसका पावर फ्लो डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी बहुत सारे प्री रिक्विसाइड थिंग्स है, अभी बहुत सारी चीज है वो डिस्कस करेंगे, बाद में हम लोग पावर फ्लो डायग्राम डिस्कस करेंगे। सो राइट डाउन ए न्यूमेरिकल हियर। ऑलरेडी हम 1 आवर से बस थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। अ 10 पोल 25 हर्ट्ज अल्टरनेटर is directly coupled to synchronous motor and synchronous motor, SM मतलब synchronous motor is driven at 60 hertz. Synchronous motor is driven at 60 hertz. Find number of poles in synchronous motor. Find number of poles in synchronous motor. So a 10 pole 25 hertz alternator is directly coupled to synchronous motor which is driven at 60 hertz 60. Find the number of poles in the synchronous motor. This is the question and you have to answer it. This is the question and you have to answer it, right? So try it. First of all, try yourself.
ये है आपका अल्टरनेटर, ये है सिंक्रोनस मोटर। These are magnetically coupled. These are magnetically coupled, right? So number of poles क्या है यहाँ पे? Number of poles is how much? 10. Number of, we don't know. इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 25 हर्ट्ज है। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 60 हर्ट्ज है। सो अब बताओ सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है एंड अल्टरनेटर का जो रोटर है उसका स्पीड क्या होगा? वी नो दैट स्पीड इज गिवन बाय ns, n इज इक्वल टू 120 f बाय p। तो आपको यहां पे नंबर ऑफ पोल्स, हाँ नंबर ऑफ पोल्स पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो स्पीड आप इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स पता है, स्पीड पता है, सॉरी नंबर ऑफ पोल्स पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो स्पीड आप इजीली निकाल पाएंगे। बट यहां पे एक चीज है, मैग्नेटिकली कपल्ड है, सॉरी मैकेनिकली कपल्ड है। यहां पे एक वर्ड है कपल्ड। कपल्ड मतलब यहां पे क्या होगा? मैकेनिकली कपल्ड होगा। सो मैकेनिकली अगर कपल्ड है तो स्पीड क्या होगा? दोनों का सेम होगा। ठीक है, मैकेनिकली कपल्ड अगर होगा दोनों का स्पीड सेम होगा। सो स्पीड रिमेन कांस्टेंट। सो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बाय number of poles. So I can write here f by p is constant. I can write here f by p is constant. So 25 by 10 is equal to, यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या है? 60 by p. So p क्या हो जाएगा यहां पे? स्लिप क्या हो जाएगा? इट विल बी 600 by 25. 25 2 जा 50, 25 4 जा 24. ओके, सो यहां पे नंबर ऑफ पोल्स क्या होगा? 24, राइट? सो यहां पे नंबर ऑफ पोल्स क्या होगा? 24। मेन कंसेप्ट क्या था? यहां पे कपल्ड है, मैकेनिकली कपल्ड है। मैकेनिकली कपल्ड है मतलब स्पीड सेम होगा, तो वहीं से आपको निकालना है नंबर ऑफ पोल्स। ओके, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, व्हाट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट? आई नीड टू स्टडी द पावर फ्लो इक्वेशन। मुझे क्या स्टडी करना है? पावर फ्लो इक्वेशन। इसका मीनिंग क्या है आप बताओ? रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है रियल एंड रिएक्टिव पावर का, एंड इसका रिलेशन किसके साथ है वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, रियल एंड रिएक्टिव पावर, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली रियल एंड रिएक्टिव पावर का ही कंट्रोल करना है फॉर स्टेबिलिटी, राइट? सो रियल एंड रिएक्टिव पावर फाइंड करना है, तो हम कहां से फाइंड करेंगे? कहां से फाइंड करेंगे आप बताओ? मुझे इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए। आई नीड टू हैव ए इक्विवेलेंट सर्किट। अच्छा, इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए, तो हम ऑलरेडी ट्रांसफार्मर में और इंडक्शन मशीन में इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ चुके हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट का मेन पर्पज, मेन चीज क्या है? सोर्स भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। सोर्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ वही भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। दैट विल ड्राइव द करंट इन, दैट विल ड्राइव द पावर इन द एंटायर मशीन। सो सोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे क्या स्टडी करना चाहिए यहाँ पे?
EMF इक्वेशन करना चाहिए, राइट? सो ऑलरेडी वी नो द EMF इक्वेशन फॉर एनी मशीन इज E पर फेज 4.44 F टर्न पर फेज, ठीक है? दिस इज द EMF इक्वेशन फॉर एनी मशीन. This is the EMF equation for any machine. So let me repeat you once again. पावर फ्लो इक्वेशन चाहिए, उसके लिए मुझे इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए, इक्विवेलेंट सर्किट के मुझे EMF इक्वेशन चाहिए, ठीक है? EMF इक्वेशन के लिए मुझे EMF इक्वेशन चाहिए. बट यहां पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा. व्हाट इज दैट मॉडिफिकेशन? Modification is due to winding. Okay, so EMF equation में थोड़ा सा modification होगा and that modification is due to the winding. Okay, so क्या होगा modification? मॉडिफिकेशन मतलब क्या है? यहां पे कुछ टर्म ऐड होगा या डिलीट होगा, ठीक है? तो आप बताओ यहां पे कौन सा टर्म ऐड होगा? इनटू KW वेयर KW को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइंडिंग फैक्टर, राइट? KW को हम क्या बोलते हैं? वाइंडिंग फैक्टर. तो यहां पे एक क्लू मिल गया. तो वाइंडिंग का मॉडिफिकेशन होगा, अल्टीमेटली वाइंडिंग का मॉडिफिकेशन होगा. देन आई विल बी गेटिंग अनदर EMF इक्वेशन वेयर सम मॉडिफिकेशन हैज बीन डन. सो यहां पे अल्टीमेटली वाइंडिंग का मॉडिफिकेशन होने वाला है. तो अब बताओ वाइंडिंग का मॉडिफिकेशन होगा मतलब क्या, किसका होगा? आर्मेचर वाइंडिंग का, व्हिच इज प्लेस्ड इन द रोटर और स्टार्टर. अब बताओ स्टार्टर में आर्मेचर वाइंडिंग का मॉडिफिकेशन होगा. ये किस में है? स्टार्टर में है या रोटर में है, ठीक है? अब बताओ. तो आर्मेचर वाइंडिंग का मॉडिफिकेशन होगा, राइट? अच्छा, कौन सा मॉडिफिकेशन करेंगे? मॉडिफिकेशन करेंगे उसके पहले ये भी तो जानना चाहिए पहले क्या था सिचुएशन पहले क्या था उसको तो मॉडिफाई करोगे ना आप लोग. पहले क्या था उसको ही मॉडिफाई करोगे. तो पहले क्या था? हम सिंपली वाइंडिंग करते हैं. तो वाइंडिंग का मतलब क्या है? यहां पे स्लॉट्स है, स्लॉट्स में हम वाइंडिंग करते हैं. कैसे वाइंडिंग करते हैं आपको ये जरूर पता होगा. ये है मान लो नॉर्थ पोल एंड ये है आपका साउथ पोल एंड यहां पे नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं. कितना नंबर है? 1 2 3 7. ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं, यहां पे नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं. ये आपका एक कंडक्टर है. तो क्या होता है बेसिकली यही टाइप का आपका वाइंडिंग कनेक्शन होता है, राइट? यही टाइप का आपका वाइंडिंग कनेक्शन होता है, ठीक है? प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है, राइट? यही टाइप का वाइंडिंग कनेक्शन होता है. तो यहां पे आप देख सकते हैं हर स्लॉट्स में वाइंडिंग प्लेस्ड है. ईच स्लॉट्स इज availed with some conductors, some winding. So it is called distributed winding. It is called distributed winding. इसका मतलब हर स्लॉट्स में वाइंडिंग होना चाहिए. अगर इसको हम रिप्लेस करके ऐसे करते, बस इसको हम बस रिपीट करते, इसको ही अगर बस रिपीट करते, इसको हम बस रिपीट करते, फाइनल ये छोड़ देते, ये छोड़ देते, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाकी स्लॉट्स खाली हो गया. अदर स्लॉट्स
not having any conductors, but only two slots, one from north pole and see only one slots from each pole are equipped with the conductors. तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग. कंसंट्रेटेड वाइंडिंग. मैंने आपको क्या बोला? ईएमएफ इक्वेशन मॉडिफाई होगा. सो ईएमएफ इक्वेशन क्यों मॉडिफाई होगा? क्योंकि हम आर्मेचर वाइंडिंग को मॉडिफाई करेंगे. तो आर्मेचर वाइंडिंग को जो भी मॉडिफाई करेंगे उसका पहला कंडीशन क्या था वो तो जानना चाहिए. वही हम अभी देख रहे हैं क्या था एग्जैक्टली. तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग क्या है, ऑलरेडी आप समझ गए अभी. ठीक है, समझ में आ रहा है. डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हर वाइंडिंग में हर स्लॉट्स में वाइंडिंग प्लेस्ड होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड योर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग. अगर एक पोल का एक ही स्लॉट्स में अगर वाइंडिंग रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग. उसको हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग. राइट नाउ let me tell you another important thing. ये है आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल. सो पहले हम क्या कनेक्ट किए थे? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में हम फर्स्ट स्लॉट्स जाके 7 स्लॉट्स में कनेक्ट किए थे. सी क्या कैसा कनेक्शन था? मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो कैसा कनेक्शन था? 1 to 7, 2 to 8, 3 to 9, 4 to 10, 5 to 11, 6 to 12. राइट? इसी टाइप का कनेक्शन था. बट मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा. क्या करूंगा? इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग 1 with 7 मैं क्या करूंगा? 1 to 6 कर दूंगा. सॉरी, राइट? मैं 1 to 6 कनेक्ट कर दूंगा. सो 1 to 6 जो कनेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अच्छा, पहले 1 to 7 था, अभी क्या हुआ? 1 to 6 हुआ. तो अभी कुछ शॉर्ट हो रहा है ना आपका, मतलब शॉर्ट हो रहा है, एंगल में कुछ शॉर्ट हो रहा है, स्लॉट्स में कुछ शॉर्ट हो रहा है. पहले जितना होना चाहिए था अभी कम हो रहा है, तो शॉर्ट हो रहा है स्लॉट्स में. तो इसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट पिच वाइंडिंग. इसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट पिच वाइंडिंग. तो क्या मॉडिफिकेशन हुआ यहां पे? पिचिंग मतलब पहले फुल पिच था, ऑब्वियसली पहले फुल पिच था, अभी क्या हो गया? शॉर्ट पिचिंग वाइंडिंग. अच्छा सर, यहां पे शॉर्ट पिचिंग फुल पिचिंग क्या होता है? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सो उसको जानने के लिए हमको दो चीज पढ़ना पड़ेगा. वन इज पोल पिच. ओके, वन इज पोल पिच. सो पोल पिच का मीनिंग क्या है? एंगल कवर्ड बाय ईच पोल. सो हमेशा इसका इलेक्ट्रिकल डिग्री बताना है, मैकेनिकल नहीं. सो इट विल बी ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल. इट इज द एंगल कवर्ड बाय ईच पोल. इसका हमेशा 180 डिग्री रहेगा. सो थीटा ई विल ऑलवेज बी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल. इसमें कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं है. ठीक है, इसमें कोई भी सेकेंड ओपिनियन नहीं है. सिमिलरली
राइट डाउन कॉइल स्पान बीटा, ये है आपका पोल पिच। कॉइल स्पान मतलब क्या है, ये है आपका एक कॉइल है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ द कॉइल, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉइल स्पान। राइट डाउन डिस्टेंस बिटवीन टू sides of a coil. So it is the distance between two sides of a coil, right? इसको हम क्या बोलते हैं, coil span बोलते हैं, right? So coil span is beta. So I was talking about full pitch and short pitch winding. So write down when beta is equal to 180 degree or coil span is equal to pole pitch, coil span is equal to pole pitch, then it is said to be full pitch winding. First one. Now short pitched वाइंडिंग, इसका मीनिंग क्या है, when बीटा इज लेस देन 180 डिग्री, इसका मीनिंग क्या है, when coil span is less than pole pitch. You can see here, जहां पे हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग डिस्कस किए थे वहीं पे ये होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा. सो when coil span is less than 180 degree, then it is said to be short pitched winding. So I was interested about the modification. I was interested regarding the modification in the EMF equation. So that modification was due to the armature winding. So पहले armature winding क्या था, पहले था आपका कंसंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का, एंड यहां पे क्या होगा, शॉर्ट पिच फुल पिच वाइंडिंग के लिए एक मॉडिफिकेशन होगा. तो बेसिकली पहले क्या था, फुल पिच था, अभी क्या हो गया, शॉर्ट पिच हो गया. तो शॉर्ट पिच के लिए एक मॉडिफिकेशन आएगा, कहां पे, ईएमएफ इक्वेशन में. ईएमएफ इक्वेशन में मतलब उसका मैग्नीट्यूड में. ओ कितना मॉडिफाई होगा, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, राइट. बट यहां पे मॉडिफिकेशन होगा, एंड द मॉडिफिकेशन ड्यू टू द पिचिंग इज कॉल्ड केपी. सो राइट डाउन केपी मतलब क्या है, केपी इज द मॉडिफिकेशन ड्यू टू पिचिंग. सो केपी इज बेसिकली योर पिच फैक्टर, एंड केडी इज नथिंग बट योर modification due to distribution of winding. So KD is called your distribution factor. KD is called your distribution factor. So in the next class we will be discussing what is the magnitude of KP, what is the magnitude of KD, and what is the modification in EMF. ये सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे. ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस क्लास, बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड सिंक्रोनस मशीन का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, टॉर्क बैलेंस इक्वेशन के ऊपर हम डिस्कस किए, टाइप्स ऑफ रोटर के बारे में हम लोग डिस्कस किए, ठीक है. एंड आई आस्क्ड यू व्हिच टाइप ऑफ रोटर इज मोस्ट स्टेबल, मतलब व्हिच टाइप ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज मोस्ट स्टेबल, whether salient pole machine is more stable or cylindrical machine is more stable. Tell me which type of synchronous machine is more stable, salient pole or cylindrical. Tell me. You have to write it in the comment section. Okay, you have to write it in the comment section, right? So in the next class we will be discussing the formula for pitch factor and distribution factor, and what is the modification of the
EMF equation by the use of this pitch factor and distribution factor. Combiningly, it is called winding factor Kp into Kd, where Kw is called your winding factor. Let me write here. मॉडिफिकेशन क्या होगा, कितना मॉडिफिकेशन होगा वो डिस्कस करेंगे बाद में. E पर फेज विल बी 4.44 IMF टर्न पर फेज into Kw. This will be the modification. Kw ही मॉडिफाई हुआ, ये मल्टीप्लाइड हो गया, राइट. सो दिस इज कॉल्ड योर वाइंडिंग फैक्टर, which is combination of pitch factor and distribution factor, right? Okay, so thank you all of you for watching this video, and we'll be discussing the armature reaction and the concept of pitch factor, distribution factor, and some numericals in the next class. Okay, so thank you all of you. Keep studying, keep learning. Okay.